Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Darul Arqam School FB area campus online classes for the new session. This is a video for class 7 science. Today the topic of our video is structure of an atom, which is the unit 5 of your book. We have already started this lecture during the physical classes, so let's have a quick recap of the key points. Structure of an atom. Before we discuss about it, we have already done it in a physical classes. So let's have a quick recap. Can you identify this picture? Yes, this is a picture about an structure of atom. There are three main things: electron, proton and neutron. Proton and neutron are usually found in a nucleus. जो एटम का दिमाग होता है बीच में, जो न्यूक्लियस कहलाता है, उसमें ज्यादातर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो विद देम इन अ न्यूक्लियस. इन एन आउटर ऑर्बिट देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. बाहर आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके चार्ज नेगेटिव होते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. जब दो एटम आपस में टकराते हैं तो वो एक बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं, और उस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए या तो उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करना पड़ता है, अदरवाइज दे कैन लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स. इन दिस वे दे कैन फॉर्म द बॉन्ड. The tendency of an atom to lose or gain or share its electron is called valency, and when the electrons are going to be loosed by some atom or gained by some atom, that is called ionic bond. जब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो है वो भेज दे या सामने वाले का इलेक्ट्रॉन उससे ले उसके ऑर्बिट से, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. इन अदर हैंड, कोवेलेंट बॉन्ड आर द बॉन्ड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. जब दो एटम आपस में जुड़ के अपने आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दें एक दूसरे के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. दैट Let's learn about something about isotopes. What is isotope? Isotopes are atoms of the same element with different numbers of neutrons. Can you see this picture? This is a picture of different isotopes of carbon. Carbon एक ही एलिमेंट है, लेकिन इसके तीन isotopes यानी तीन यहाँ पे atoms बने हुए हैं. Why? Because the number of neutron and protons are changed in each atom. यहाँ पे हर atom के जो है number of proton और neutron अलग-अलग हैं. The radioactive isotopes of carbon are used to determine the age of an object by a process called carbon dating. Carbon dating एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एज पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है उसके एटम के थ्रू, आइसोटोप्स के थ्रू. A chemical formula to represent atoms is in the forms of symbols and numbers के थ्रू ये जो है सिंबल्स के जरिए ये हम मेंशन कर सकते हैं. हर सिंबल के ऊपर वाला नंबर जो होता है वो उसका होता है मास नंबर, जबकि नीचे वाला उसका एटॉमिक नंबर होता है. According to the law of constant composition, the chemical composition of compounds always remain the same regardless of how they are produced. हमारे लॉ ऑफ कंपोजिशन के हिसाब से कंपाउंड में जो मौजूद होती हैं चीज़ें, वो आपस में एटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक दूसरे से शिफ्ट होते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं. So we have already learned this lesson during our physical classes, and even I have given a homework for reading it thoroughly. मैंने आपको पहले ये read करने के लिए दिया था. Let's proceed to the lecture for today. First of all, you have to prepare a title page on your notebooks. For the structure of an atom, kindly prepare a colorful diagram on the same page. Then in front of it you have to write a work summary. हम हमेशा lesson start करने से पहले work summary लिखते हैं. So write a work summary. You have to write the date of started on, finished on, and then you have to write a detail about the work which we are going to do on book and on notebook. जो कुछ भी हम book में या notebook में करेंगे हम उसकी detail summary यहाँ पे लिखेंगे. Then write a heading of key points under the work summary, below the work summary, and then you have to write the key points by yourself. आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा है तो इस चैप्टर में जो जो आपने सीखा है आप वो की पॉइंट्स के तौर पे लिख सकते हैं. यू कैन राइट 5, 6 और 10 एज मच एज यू कैन. जितने आपको समझ में आए हैं आप उतना लिख सकते हैं. नाउ ऑन अ नेक्स्ट पेज, open page number 70 on your book. There is an exercise of work it out. The question says draw atomic structures of the following elements. आपकी बुक में
पेज नंबर 70 पे ये एक्सरसाइज गिवन है. इफ यू कैन सी द पार्ट 1 Ne. What is Ne? Ne एक्चुअली इज अ नियॉन गैस. यहाँ पे नियॉन गैस का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बनाना है. नियॉन गैस का हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है मास नंबर वो 20 है और एटॉमिक नंबर 10 है. किसी भी एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखा जाने वाला नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है. ये हमें बताता है कि पीरियोडिक टेबल में इसका रोल नंबर क्या था. जैसे क्लासेस में रोल नंबर होते हैं ना, तो इसी तरह एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के एटम का पीरियोडिक टेबल में रोल नंबर है. और हर एलिमेंट के ऊपर लिखे जाने वाला नंबर उसका मास नंबर होता है. इफ़ यू रिमेंबर, मास नंबर क्या था? मास नंबर इज एन एडिशन, यानी किसी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम प्लस कर लें किसी भी एटम के तो उसका मास नंबर बन जाता है. लेट्स मेक एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला सर्कल बनाएंगे, इनर सर्कल, जो कि हमारा न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस बनेगा. इसके अंदर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाएंगे. इस सर्कल के बाहर हम एक ऑर्बिट और बनाएंगे. देन वन मोर ऑर्बिट. 3 ऑर्बिट्स बनाए हमने. पहला ऑर्बिट जो था वो हमारा न्यूक्लियस का काम करेगा यानी एटम के दिमाग का. फिर 2 ऑर्बिट हमारे इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे. अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे. देखिए मास नंबर जो है वो एडिशन है किसी भी क्या कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन की. लेकिन एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर दर हकीकत में नंबर्स होते हैं कि कितने प्रोटॉन आपके एटम में मौजूद हैं. और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बता देते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं. अब हमें बाहर के 2 ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं यानी छोटे सर्कल्स बनाने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. हमें कितने बनाने? 10 बनाने. लेट्स स्टार्ट इट. पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. बाकी इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं. पहले में 2, दूसरे में 6 से 8 तक बन सकते हैं. 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. फिर तीसरे में हम 10 से 15 तक बना सकते हैं. ओके, ये देखें मैं बाहर पहले ऑर्बिट में मैंने 2 बनाए हैं. अब मैं बाहर के ऑर्बिट में टोटल 8 बना रही हूँ. नाउ माई स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज कंप्लीट. You can even see that structure on page number 65. आपके पेज 65 पे तमाम एटम्स का स्ट्रक्चर मौजूद है. You can even take a help from there. Okay बेटा? Now let's move on to the next work. Open your notebooks. You have this page just after the work summary. और उस वर्क समरी के नेक्स्ट पेज पे अब आपने क्या करना है? डेट डालनी है. यहाँ मैंने डेट डाली हुई है. आप अपनी वो डेट डालेंगे जिस दिन आप काम कर रहे हैं. और क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं क्लास वर्क का तो इसलिए हम टिक लगाएंगे क्लास वर्क के बॉक्स में. नाउ जस्ट आफ्टर द रेड लाइन आप पहली हेडिंग जो डालेंगे वो ब्लैक पेन से या मार्कर से न्यूमेरिकल की डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेसन. Let's write a question for the numerical. What is a question? An atom has 35 electrons and protons. Its mass number is 80. Calculate the number of neutron in this atom. हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बता दिए 35 है, मास नंबर बता दिया, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता. मैंने आपको क्या बताया था? मास नंबर क्या होता है? द एडिशन ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जितने भी प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे उनको प्लस करें तो हमें मास नंबर पता चलेगा. अब हमें न्यूट्रॉन तो नहीं पता तो हम मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द हेडिंग ऑफ डाटा और हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे. हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका सिंबल है Z, दैट इज 35. फिर हमें मास नंबर गिवन है जिसका सिंबल है A और कितने हैं? 80. यू आर राइट. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? यस, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नाउ लेट्स राइट अ फॉर्मूला हेडिंग. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? The number of neutron is equals to A minus Z. Now let's do the solution. So A is 80 and Z is 35. So minus 35 from 80. What will be the number of neutrons then? What will be your answer? Can you calculate it? Yes, you are right. That is 45. Absolutely correct. Turn on your page. On the next page you have to write the date again and tick the HW box because now I am going to explain you your homework.
you have to write the heading of short question answer just on the first line after the red, and write the question number 1, differentiate between an atomic number and mass number, and you have to do it by yourself by reading the chapter thoroughly. You can take a help from page number 62. Then question number 2, why are elements arranged in the periodic table? In this questions you can find out that how they are going to arrange. अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से अरेंज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के तहत, एटॉमिक नंबर के तहत. So you can read page number 64 thoroughly and write an answer from that. Now we have next question, what are the uses of isotopes in medicines? So write the answer of it. What is the carbon dating? Why is it important? अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में की पॉइंट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. आप एक बार चैप्टर रीड करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, जस्ट राइट शॉर्ट वन, नॉट मोर देन 5 to 6 lines. ओके, so let's see what's your homework. Let's have a recap for that. Your homework is to make a title page of unit 5. Then you have to do the exercises of work it out on page number 70 and question number 3 and 4 on page number 72. Question 3 and 4 जो है वो MCQs और true false हैं. And then complete the given class work from the slides and do short question answers on your notebook. See you next time. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz.